Assalamu alaikum and welcome, ladies and gentlemen, to my channel. This is Jahanzeb with Philip Larkin's poem Aubade. So the title is highly ironical because Aubade means a love song or a mourning song, but this poem suggests morbidity, nihilism, pessimism, and lack of hope. So this poem was written after the death of Philip Larkin's mother. And we also know that he did not have his family, he did not marry anyone. So he spent most of his life alone. You must have gone through his another poem, Mr. Bellini. So Mr. Bellini जो इसकी poem है, उस नज़म में हम देखते हैं कि Mr. Bellini is someone who was living in a hired room before the narrator goes to take or occupy the same room. So उस room में रहते हुए narrator comes to realize many things about Mr. Bellini, उसकी आदत, उसकी बातें, उसकी तौर तरीके रहने के. So वहाँ से हमें बड़े एक डिप्रेसिव किस्म का एटीट्यूड नज़र आता है मिस्टर ब्लिनी की लाइफ में. प्लस डॉकरी एंड सन्स, उसमें भी हम देखते हैं कि फिलिप लार्किन ही इज़ मिसिंग, और या वो याद कर रहा है कि या उसे एक तरह से दुख है इस चीज़ का कि डॉकरी के पास औलाद है लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई. So in this way, he spent most of his life alone, and here this poem is filled with morbidity, a fear of death. तो हम देखते हैं कि इस poem में वो death का fear किस तरह है और ये ironical किस तरह है. जैसे life is also ironical. We plan something else and it happens something else. So is the title of this poem, जिसका मतलब जो है a love song और a mourning song, लेकिन ये develop हो जाता है a song of death और mourning. So that mourning mourning shifts to mourning. I work all day and get half drunk at night. Waking at 4 to sound less dark, I stare. In time the curtain edges will glow light. Till then I see what's really always there. So he is talking about his sleepless nights, his sleeplessness, his insomnia. वो कह रहे कि I work all the day, कि मैं तमाम दिन काम करता हूँ, and half drunk when I come back, I get into my room, I get on my bed, and I keep waking till 4 o'clock in the morning, and there is soundless dark, it is pitch dark, it is complete silence everywhere. And I keep staring in that dark, I keep thinking, I keep imagining, I keep visualizing. तो मैं सोचता रहता. In the time the curtain edges will glow light, and I keep thinking till it is almost the dawn time, almost the morning time, when the rays of sun, they are willing or trying to get into my room. Till then I see what's really always there. And then I believe, I try to feel, I tend to feel. There has always been something. कोई चीज़ है जो वहाँ पे हमेशा से मौजूद है. Unresting death. And that is death which is not resting any time, which is all the time there, sometime in this part of the country, sometime in that part of the country, sometime twice in the same house. So death is everywhere. Death is like a beautiful brute that is working and it is moving elsewhere, everywhere, and it can attack you anytime, but you are unaware of it. So death is always unresting. It is working all the day, regardless of the time, regardless of the weather. A whole day nearer now. And यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जिस हम अपनी बर्थ डेज पे कहते हैं कि आज जिंदगी का 1 साल कम हो गया. Similarly, he means to say कि now I have also spent 1 more year of my life that was given to me, that was meant for me. मेरी कंप्लीट एज में से. तो आज एक और साल मैंने जी लिया, इस तरह एक और दिन पूरा हो गया मेरी ज़िंदगी का, यानी मेरी ज़िंदगी के जितने दिन लिखे थे आज उसमें से एक दिन मैंने ज़्यादा जी लिया. मैं हर लम्हा अपनी मौत के करीब आ रहा हूँ. Making all thought impossible, but how and where and when I shall myself die. So there is only one thought on my mind. So रात से लेके ड्रंक पोजीशन बेड पे, सुबह 4 बज गए, रोशनी होना शुरू हो गई, सारी रात ये सोचता रहा कब कहाँ कैसे मेरी मौत आएगी, यानी मैं कैसे मरूंगा.
So this is all filled with morbidity. ये बिल्कुल उसकी डेथ से रिलेटेड एक चीज है कि ही इज टू मच ऑब्सेस्ड विद डेथ. Arid interrogation. So arid means lack of interest in something. So I stop thinking about it. I stop feeling about it. I stop questioning myself. Yet the dread of dying. लेकिन वो जो मरने का खौफ है, मैं अगर अपने आप से ये सवाल पूछना छोड़ भी दूं कि मैंने कब मरना है, कहाँ मरना है, किस जगह पे मेरी मौत लिखी है, फिर भी अगर मैं इस चीज को छोड़ भी दूं क्वेश्चनिंग को, yet the dread of dying and being dead flashes afresh to hold and horrify. It is enough itself. यानी मौत का खौफ ही इतना मेरे लिए काफ़ी है कि वो मेरी हर चीज़ को, मेरे सुकून को तबाह करके मुझे हॉरिफाई कर देता है और मेरे उस गम को ताज़ा कर देता है कि कुछ ही अरसे में मैं मर जाऊंगा. So all the night he is thinking about his death. All the night he is in tension कि sometime, someday he may die. कभी ना कभी उसकी मौत आएगी, जो कि उसे लग रहा है कि काफ़ी इम्पेंडिंग है, इनएविटेबल है, काफ़ी करीब है. और ये जो मोबिडिटी है दैट इज प्रिवेलिंग ऑल थ्रू द पोम. पूरी नज़म के दौरान हमें ये मोबिडिटी नजर आ रही है. इन दिस स्टैंजा he starts with the mind blanks at the glare, not in remorse, the good not done, the love not given, time torn off unused, nor wretchedly because an only life can take so long to climb, clear of its wrong beginnings, and may never. So here he is talking about that when I see the light in the morning, because I am sleepless all the night, जैसे ही मैं उस रोशनी को देखता हूँ, I'm feeling blur, और माइंड उस वक्त मेरा बिल्कुल उसकी वर्किंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ओवर द नाइट इट वॉज ओवर यूज्ड, थिंकिंग, मोबिडिटी, डेप्थ. सो वो कह रहे कि लेकिन एक चीज़ है कि वो जो रिमोर्स है, जो गिल्ट है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. द गुड नॉट डन कि ये अच्छा काम था, ये नहीं किया. द लव नॉट गिवन, कहीं मैं प्यार कर सकता था, नहीं किया. टाइम टर्न ऑफ अनयूज्ड, कि वक्त ज़ाया कर दिया. नॉर wretchedly because an only life can take so long to climb clear of its wrong beginnings and may never. कि एक ही जिंदगी इंसान की, and one cannot try and hanker after achieving so many targets. One cannot. बेशुमार काम है जो कि इंसान अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि इस काम को मैं ऐसे ठीक कर सकता था, ऐसे हो सकता था. कह रहे कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. मेरे पास एक ही खौफ है और वो है डेथ का. बट एट द टोटल एम्प्टीनेस फॉरएवर, द श्योर एक्सटेंशन दैट वी ट्रैवल टू and shall be lost in all ways. So what I am thinking, I'm always thinking about that total extinction, वो extinction जो होनी है, यानी वो खात्मा जिसमें हर चीज़ तबाह हो जाएगी. So we are traveling to that, हम उसकी तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. जिस तरह पोइट ने कहा कि हर रोज़ मुझे फील होता है कि I'm going or I'm one day nearer to death. Or not to be here and not to be anywhere. So we are not here, we are not anywhere. And soon nothing more terrible, nothing more true. So जल्दी ऐसा होगा कि कुछ भी ऐसा कोई चीज़ हमारे पास नहीं रह जाएगी except for nothingness. So this is nihilistic attitude. कह रहे कि we travel and shall be lost in all ways. हम मरेंगे और खो जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, हम कहीं पे भी हमारा वजूद नहीं मिलेगा. और इससे ज़्यादा टेरिबल और इससे ज़्यादा सच्ची कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. सो वन डे वी हैव टू डाई. In stanza 3 he says, this is a special way of being afraid, no trick dispels. So a person is always afraid of death. तो कह रहे कि मैं तो एक बड़े स्पेशल अंदाज में इस डेथ के खौफ से डरा हुआ हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो ट्रिक टू डिस्पेल द फेयर. कोई ऐसा ट्रिक नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि मौत के इस खौफ को भगा सके. रिलीजन यूज्ड टू ट्राई. कह रहे रिलीजन किसी ज़माने में हुआ करता था, यानी पीपल वुड टेक
refuge in religion and religion would help people. कह रहे लेकिन अब क्या है? The vast moth-eaten musical brocade. ब्रोकेट लिबास को कहते हैं. तो वो कह रहे एक बड़ा म्यूजिकल, बड़ा खूबसूरत सा लिबास था रिलीजन, जो कि मॉथ ईटन है, यानी दीमक पड़ चुकी है, कीड़े खा चुके हैं इसे, एक तरह से टॉर्न अपार्ट है. यानी वो कह रहे कि रिलीजन भी अब, यानी बेसिकली वो कह रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस अब वो इस काबिल नहीं रही कि वो आपको थोड़ा सा इत्मीनान दे सके. ब्रोकेट क्रिएटेड टू प्रिवेंट वी नेवर डाई. And yes, religion used to try, it used to tell us that a day will come when you will be living till eternity. A day will come when you will never die. So you will resurrect, you will live in heaven forever. कह रहे कि अब वो चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है. क्या I believe, यानी he is being like a person who is almost non-believer, according to these lines, what they suggest is कि वो बिल्कुल एक तरह से एथीस्ट होके बात कर रहा है कि रिलीजन के अंदर भी वो वाली कशिश नहीं रही, कोई ऐसी कंसोलेशन नहीं रही कि वो मुझे रोक सके, मुझे सुकून दे सके और वो मुझे एक ज़िंदगी के बारे में उम्मीद दे सके, बेशक वो अगली ज़िंदगी क्यों ना हो. क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल उस स्टेज पे हूँ कि मैं बिल्कुल मॉर्बिड हूँ, निहिलिस्टिक थिंकिंग है मेरी, मैं डेथ से फुल इम्यून हो चुका हूँ. देन ही सेज एंड स्पेशियस स्टफ that says no rational being can fear a thing it will not feel. और बेशुमार जो स्टफ है उसमें रिलीजन का, that tells के कोई भी जो रैशनल बीइंग है वो कभी भी उस चीज़ से डरेगा नहीं जिसको वो फील नहीं करता. यानी फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इर्रेशनल टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क, कि आप उसमें इस वजह से डर जाओ कि अंधेरा है तो इसमें जिन भूत होंगे, अंधेरा है तो इसमें कोई चुड़ैल हो सकती है, घोस्ट्स हो सकते हैं. सो इट इज़ इर्रेशनल. वो कह रहे कि जो रिलीजन्स दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कोई रैशनल माइंड उस चीज़ से नहीं डरता जिसको उसने फील ना किया. सो डेथ इज़ वन ऑफ देम. वी हैव नॉट फेल्ट डेथ. हम में से किसी ने डेथ को नहीं चखा. वो कह रहे फिर रिलीजन ये बताते हैं कि फिर मौत से डरने की ज़रूरत क्या है. कह रहे कि नो, दिस इज़ नाउ ओल्ड थिंग. अब वो जो डर है वो दिल में बैठ चुका है. Not seeing that this is what we fear. No sight, no sound, no touch, or taste or smell. Nothing to think with. Nothing to love or link with. The anesthetic form which none come around. So यहाँ पे वो कह रहे कि अभी कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही कि स्मेल भी चली गई, टेस्ट भी चला गया और लाइक टच वो सारा, यानी अब वो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि कोई, यानी मौत क्या है बेसिकली कि इसके खौफ में कोई साइट, कोई साउंड, कोई टच, टेस्ट, स्मेल, हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म है. हर चीज़ इस जब ये आएगी हर चीज़ का एक खात्मा हो जाएगा. पांचों सेंसेस हमारी जवाब दे जाएंगी. हमारी हवा से खमसा, वो 5 सेंसेस उनका एंड हो जाएगा. हम किसी से लिंक नहीं रहेंगे, किसी से कनेक्शन में नहीं रहेंगे और डेथ इज़ अल्टीमेट रियलिटी. और ये एक एनेस्थेटिक फॉर्म है. एनेस्थीजिया से ये वर्ड लिया गया कि एक नम कर देना, कि जब ये है तो फिर इंसान एक नमनेस फील करेगा, उसकी ये सारी सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी यहाँ तक कि ही विल बी डेड. सो अगेन इन दिस स्लाइड वी फील nihilistic attitude, morbidity on the part of the poet. So coming to the next stanza. So stanza 4, which is in fact the second last stanza. So it says, just on the edge of vision, a small unfocused blur, a standing chill that slows each impulse down to indecision. Most things may never happen. This one will. And realization of it rages out in furnace fear when we are caught without people or drink. So furnace fear किसको कह रहे हैं? डेथ को. वो डेथ के एलिमेंट को, उस माहौल को कह रहे कि अब ये, सो इट सेज जस्ट ऑन दैट एज ऑफ द विजन अ स्मॉल अनफोकस्ड ब्लर, लाइक अब वो फिलहाल एक ब्लरी सी फीलिंग आ रही है इसे. सारी रात का जागा हुआ, लाइट्स इसकी आंखों में अब पड़ना शुरू हुई, ही इज़ फीलिंग ब्लर एंड ही इज़ नॉट एबल टू have a distinct sight. A standing chill that allows each impulse down to indecision. और उसकी बॉडी नमनेस का शिकार हो रही है.
कोई इम्पल्स उसकी काम नहीं कर रही, हर एक चीज़ इनडिसेसिव हो चुकी है, बॉडी अब वो फील कर रहा है कि जो उसे नींद आ रही है और जो डेथ उसे आएगी, ऑलमोस्ट इनके दरमियान शायद एक पैरेलल कनेक्शन है, शायद एक पैरेलल लेवल पे इसका एंड भी ऐसा होगा. मोस्ट थिंग्स नेवर हैपन बट दिस वन वे. तो बहुत सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में होती हैं जो प्लान में होती हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो नहीं होते. कह रहे लेकिन ये वो चीज़ है जो कि हमारे माइंड में है, थॉट्स में है, ये होके रहेंगे. एक बंदा बिलियनियर बनने का सोचता है, वो नहीं बन पाएगा, शायद बने शायद ना बने, लेकिन ये होके रहेगा क्योंकि डेथ इज़ फॉर एवरीवन. और इस चीज़ की जो रियलाइजेशन है, ये इस तरह रेज करती है, इस तरह इंसान को खौफ दिलाती है, गुस्सा भी दिलाती है, परेशान करती है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ फर्नेस फेयर, कि एक भट्टी है खौफ की, एक जलती हुई खौफ की भट्टी है जो कि हम हमेशा फील करते हैं. एंड वी आर कॉट विदाउट पीपल और ड्रिंक, और जिसके अंदर हम जब हैं तो हमारे आसपास ना लोग हैं हमें सहारा देने के लिए, ना हमें पीने के लिए पानी मिलेगा. So this is the attribution of depth that he is talking about. Courage is not good. So he says being courageous while facing death, it will not do any good. कोई फायदा नहीं है इसका. It means not scaring others. और courage होना इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डराएं. मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टोइक होते हैं, कोई स्टोइक रेजिग्नेशन होती है उनकी, अपनी ज़िंदगी में अपने कफन खरीद लेते हैं, लटका देते हैं, औलाद देख के थर थर कांपती रहती है जब भी अलमारी खोलती है. तो ये बेसिकली ये वो कह रहे कि करेजियस इतना होना भी अच्छा नहीं है. डेथ तो सबके लिए, लेकिन इतना करेजियस नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को डराएं अपने एटीट्यूड के साथ. बीइंग ब्रेव लेट्स नॉट वन ऑफ द ग्रेव. और अगर आप बहादुर भी हैं तो क्या हुआ, मौत से बाहर नहीं है, कब्र से बाहर नहीं है. एवरी कवर्ड एंड एवरी ब्रेव विल इवेंचुअली डाई. हर बंदा, बेशक वो बहादुर है, वो बुज़दिल है, एक दिन उसकी मौत का आएगा और वो दिन मर जाएगा. डेथ इज नो डिफरेंट वाइंड एट देन विथस्टूड. विथस्टूड कहते हैं किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सह जाना. सो डेथ जो है वो किसी के लिए डिफरेंट नहीं है. जो उसमें वाइनिंग करते हैं, आहो बका करते हैं, यानी मौत के वक्त जो इंसान की जान निकलेगी, तकलीफ होगी, दैट इज इक्वल टू एवरीवन. Nobody would be able to withstand. वो बेशक कॉवर्ड है, वो बेशक ब्रेव है, वो करेजियस है, या वो एक चिकन हार्टेड पर्सन है. ऑल द पीपल विल फील द पैंग्स ऑफ डेथ. वो उनको डेथ की तकलीफ होगी और वो उसमें वाइनिंग करेंगे, रोएंगे, आहो बका करेंगे. एंड दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन. So all these thoughts are coming to the mind of Philip Larkin, the poet, who is restless, who is insomniac, who is having a sleepless night at home. और उसकी तमाम तर रातों में, ये सिर्फ एक रात नहीं, वो कह रहे कि मेरी हर रात का थीम, थिंकिंग और मेरा टाइम टेबल ये होता है कि मैं पूरी रात सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ. अब बंदा पूछे तुम सारी रात डेथ के बारे में सोचते रहते हो, यानी मरने से पहले ही तुम मर रहे हो, यानी तुम्हारी मौत नहीं आई और तुम उससे पहले मर रहे हो. जिस तरह टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, क्योंकि वो एक दिन की जो उसकी ज़िंदगी है वो बहादुरी से भरी है. गीदड़ की जो 100 साल ज़िंदगी है वो बुज़दिली से भरी है. वो हमेशा मौत के खौफ में है, डर में है. जिस तक कौवे को पत्थर दिखाते हैं वो उड़ जाता है. गालिब का एक खूबसूरत शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. सो दैट वेरी मच फिट्स दिस पोएम ऑफ फिलिप लार्किन कि मौत तो एक दिन आनी आनी है, अटल है, लेकिन इसको रात रात भर उसके खौफ से नींद नहीं आती कि मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा और वो सफ़र कैसा होगा. सो ऑल द सेम फीलिंग, थिंकिंग इज गोइंग थ्रू और इट इज़ प्रिवेलिंग all through the poem. Same nihilistic attitude, same morbidity. Now this is the last stanza of the poem. About slowly light strengthens. अब सुबह होने वाली है, रात की जो तारीकी थी एंड हो रही है. And the moon and the room takes shape. और उजाला हर तरफ फैल जाता है, कमरा वाकई और बिल्कुल उसी जगह पे वापस आ जाता है, उसी पोजीशन में जिस तरह मैंने उसे देखा, सेट किया. क्योंकि रात को उसे हेवले नज़र आ रहे हैं, चीज़ें परेशान कर रही हैं. वो ये नहीं कि जिन भूत परेशान कर रहे हैं, इन अ वे के थॉट्स उसको परेशान कर रही हैं. तो अब उसे लगता है कि वो अपने वाकई उसी एक नॉन सी प्लेस में है, फेमिलियर जगह पे है. सो ही फील्स कंफर्टेबल.
इट स्टैंड्स प्लेन एज वार्डरोब, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है, लाइक वार्डरोब. व्हाट वी नो हैव ऑलवेज नोन, और जिन चीज़ों को हमें पता है हम ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं. इन थॉट्स को भी हम ऑलरेडी जानते हैं. नो दैट वी कैन नॉट एस्केप, वी नो कि हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते. खासतौर पे मौत से हम बच नहीं सकते. यू कैंट एक्सेप्ट, येट कैंट एक्सेप्ट, and still we are unable to accept. Like we all know that one day will come and we'll die. Maybe the day is not far away. और सबने मरना है. तो हम जानते बूझते उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते. अब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी इसकी एक्सेप्टेंस है. हाँ, मौत का एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए. खौफ इस चीज का जरूर होना चाहिए कि like if we die we should be dying in such a way कि people may be thinking good about us, लोग हमारे बारे में बुरा ना सोचें. इसका खौफ होना चाहिए. लेकिन मौत का खौफ ये तो हर एक पे आना. फ्रांसिस बेकन जो है he talks about death कि इंसान men fear death as children are afraid of going to the dark. जिस तरह बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, इस तरह इंसान को मौत का खौफ है. सो वो कह रहे कि हम सबको मौत का पता है लेकिन हम डरते नहीं. अब वो क्या कहना चाह रहे कि रात टेरिबल थी, मौत का खौफ था. अब सुबह उठा, हर चीज़ एक तरह से पुरानी जैसी लगी, वो थोड़ा सा खौफ कम हो गया कि जिस तरह आप सारी रात को आंधी तूफान को सुनते रहें, तेज़ बारिश हो रही है, खिड़कियां बज रही हैं, इंसान थोड़ा सा बड़ा एक पेसिमिस्टिक सा फील करता है, खासतौर पे सर्दियों में. सुबह जब देखते हैं कि सूरज निकला हुआ है तो बिल्कुल वो सारा खौफ भूल जाता है. ये एक आप हॉरर मूवी देख लेते हैं, एक दिन बाद उसका सारा वो खौफ आपके माइंड से उतर जाता है. सो ही इज हैविंग दिस फीलिंग नाउ. वन साइड विल हैव टू गो, कि एक साइड तो चलनी है. वो एक साइड क्या है बेसिकली कि मीनवाइल टेलीफोन क्राउच, पर्सोनिफिकेशन यूज की कि टेलीफोन क्राउच करके आता है, यानी टेलीफोन बजना शुरू होते हैं. गेटिंग रेडी टू रिंग इन द लॉक्ड अप ऑफिसेज, टेलीफोन तैयार हो गया कि हर जगह पे बजेगा ऑफिसेज में, यानी चहल पहल शुरू होगी, हसल बसल होगी, लोग सुबह उठ के काम पे जाएंगे, ऑफिसेज में जाएंगे. एंड ऑल द अनकेयरिंग इंट्रिकेट रेंटेड वर्ल्ड बिगिंस टू रोज. और वो जो रेंटेड वर्ल्ड है जो कि इस दुनिया में आर्जी है, वो जो एक बड़ी अनइंटरेस्टेड सी अनकेयरिंग किस्म की वर्ल्ड, वो अपने काम धंधे में शुरू हो जाती है सुबह सवेरे. द स्काई इज वाइट एज क्ले, आसमान बिल्कुल साफ है जिस तरह एक मट्टी बिल्कुल क्लीन होती है. विद नो सन, बादल होंगे आसमान के ऊपर. वर्क हैज टू बी डन, लेकिन काम चलता रहेगा. वट एवर द वेदर में भी काम चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी. पोस्टमैन लाइक डॉक्टर्स गो फ्रॉम हाउस टू हाउस. पोस्टमैन जो हैं वो दे गोइंग टू एवरी हाउस. ईच पोस्टमैन इज गोइंग टू द हाउस टू डिलीवर लेटर्स. ईच डॉक्टर इज विजिटिंग पेशेंट्स. कोविड के पेशेंट्स हो सकते हैं जिस तरह आजकल चल रहा है, कोई पेशेंट हो सकते हैं जिसको डॉक्टर लेके उसे उसका इलाज करने जा रहे हैं. सो डॉक्टर्स आर गोइंग टू हाउस फ्रॉम हाउस टू हाउस टू सेव द पीपल. Postmen are going from house to house to deliver the letters from their loved ones, from their beloveds, from something important, something to make them happy. तो वो कह रहे कि जिंदगी का जो एक मेला है वो चलना शुरू हो जाता है, जिंदगी दोबारा से रच बस जाती है. ये भी हो सकता है कि एक बंदे के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है. और ये भी है कि इंसान रात को जब वो चीज़ें खौफ भूल जाता है तो दिन में इतना मगन हो जाता है, जिस तरह कहा गया कि दुनिया जो है वो एक तरह से एक ट्रैप है कि जब हम इसकी लज्जत में आते हैं हमें सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है. वो ये एक एग्जांपल है कि इंसान है, उसके पीछे जो है एक शेर पड़ा होता है जो कि उसकी मौत को रिप्रेजेंट करता है. तो वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा जाता है, तो दरख्त जो है वो और उसकी शाखें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी की मानद है. तो दो चूहे उस दरख्त की शाखों को कुतरना शुरू कर देते हैं. तो ये जो चूहे हैं ये बेसिकली उसकी दिन और रात है जो कि तेज़ी से गुजर रहा है. उसे वहाँ पे शहद नज़र आता है, वो शहद खाना शुरू कर देता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के नीचे मौत खड़ी है, दिन रात उस चीज़ को काट रहे हैं, मैं नीचे गिरूंगा, मौत मुझे खा लेगी, वो शहद खाना शुरू करते हैं. सो दैट हनी इज रिमेम्बरेंस ऑफ और आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्डली प्लेयर्स, जिसमें हम आते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या तहैया किया. अभी अभी रमदान गुजरा है, 10 नाइट्स हमने बहुत प्रे की, लेकिन अगेन वी कैन सी द सेम डिसऑनेस्टी करप्शन प्रिवेलिंग ऑल ओवर कि हम वो भूल गए, वो चीज़ निकल गई, रात गई, बात गई. नाउ वी आर अगेन बैक टू द सेम वर्ल्ड.
So this is what he may be saying. Okay, death is all the time there, but we are unwilling to accept. So this is a morbid poem. This is a poem of meaninglessness. किसके लिए लाइफ में मीनिंग खत्म हो चुके हैं, इसके लिए लाइफ में एक निहिलिस्टिक किस्म का एटीट्यूड है, वो लाइफ के अंदर बिल्कुल कोई प्लेयर फील नहीं कर रहा, उसके लिए लाइफ में सिर्फ एक मॉर्बिडिटी है कि उसको मौत का खौफ हमेशा परेशान रखता है, और उस मौत के खौफ की वजह से ही कैन नॉट हैव एनी अदर प्लेयर. So, जिस हमने शुरू में डिस्कस किया, मे बी इट वॉज द रिएक्शन टू द डेथ ऑफ हिज मदर, मे बी इट वॉज ड्यू टू हिज लॉनलीनेस कि उसने शादी नहीं की, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, और एक सॉलिटरी लाइफ उसने स्पेंड की होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रेंटेड प्लेसेस पे. तो मे बी ये उसका एक यू कैन से के रिजल्ट हो जिसको हम देख रहे हैं. So I hope कि आपको ये नज़म समझ आ गई. So if you have not yet subscribed the channel, please do subscribe the channel and please hit the bell icon to receive the notification. Thank you very much. Stay tuned.